Hello, students. So let us begin with lecture 4 for this ongoing chapter. Class 8 का physics का chapter हम कर रहे हैं heat transfer. इसका 3 lecture already हो गया है. If you have not watched the previous 3 lectures, then click on the link which is given in the description box of this video. You can go to the playlist directly, which contains all the previous lectures. Make sure to watch them and then you attend this lecture. So today we will be continuing with the chapter and we will be starting with lecture number 4. तो हमने यहां तक कर लिया था, राइट? अब हम ये डू यू नो बॉक्स जो है, डू यू नो, यहां से स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हमें डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ये सारी चीजें पढ़नी है. सो आई होप यू ऑल आर सिंसियरली फॉलोइंग द lectures which I'm uploading, gradually, and you are following the channel. Yes, you have subscribed to the channel and press the bell icon so that you should not miss out any of the videos. At the same time, you are maintaining a notebook, a copy where you are writing the running notes. याद करो, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि इस तरह से running notes बनाना, because these notes will be very, very effective when you will be practicing, when you will be preparing for your tests and exams. Okay, now let us start. Do you know 1 kg of water at 100 degrees Celsius absorbs 2.26 into 10 raised to the power 6 joules, or 5.4 into 10 raised to the power 5 calories of heat to convert into steam at 100 degrees Celsius. So ये एक फैक्ट हमें बताया गया है, एक फैक्ट जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला है. एक्सपेरिमेंट करके हमें ये पता चला है. क्या पता चला है? ये वैल्यू तुम याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है. कि अगर हम 1 kg पानी लेते हैं, 1 kg ऑफ वाटर लिया, कितना लिया? 1 kg ऑफ वाटर. इमेजिन कर पा रहे हो कि एक बाल्टी ले लो जिसमें पानी भर लो. कितना पानी भरना है? 1 किलोग्राम ऑफ वाटर भर लिया. और उसका टेम्परेचर कितना है उस पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस. यानी उबलता हुआ पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत हॉट वाटर है. एंड ये कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा ताकि इसको पूरी तरह से हम स्टीम में चेंज कर दें. इस 1 kg ऑफ वाटर जो अभी लिक्विड स्टेट में है, इसको हम अवश्य हम क्या देंगे? हीट देंगे. और हीट देने के बाद ही ये स्टीम में चेंज होगा, यानी वाटर वेपर में चेंज होगा, बॉयल करेगा. तो स्टीम में पूरी तरह से इस 1 kg ऑफ वाटर को चेंज करने के लिए, और उस स्टीम का टेम्परेचर भी कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस. आई हैव टोल्ड यू वन थिंग अर्लियर इन द प्रीवियस लेक्चर्स, that whenever there is boiling or vaporization, it happens at a constant temperature. So you see the temperature remains constant on both the sides. Only the state has changed. This side it is liquid state and this side it is vapor or gaseous state, isn't it? Gaseous state. So only the state has changed during boiling, but the temperature remains constant. And this is a very, very important point which I have emphasized earlier in the previous lecture. And I have said that this is a very, very important point to note about boiling, that it happens at a constant temperature. तो तुमने तो हीट दिया और ये 1 kg of water स्टीम में चेंज हो गया, जिसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है. तो तुमने कितना हीट दिया? How much of heat you must have given to this 1 kg of water which is at 100 degrees Celsius to completely change it to steam at 100 degrees Celsius? तो एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि इस हीट का जो वैल्यू है वो है 2.26 into 10 raised to the power 6 joules. इतना हीट देना पड़ेगा. और कैलोरीज में अगर हम इसको व्यक्त करें, इसी एनर्जी को कैलोरीज के यूनिट में, तो 5.4 into 10 to the power 5 calories. This is a fact you have to remember. Now coming to the next topic, and important topic where you can get a lot of questions in your exams, which is something very, very important. Difference between evaporation and boiling. Now children, अभी तक हमने evaporation and boiling के ऊपर काफी सारा डिस्कशन कर लिया है. प्रीवियस लेक्चर्स में काफी सारा डिस्कशन किया है. मैं बार बार एम्फसाइज दे रहा हूं कि प्रीवियस लेक्चर्स को देख कर ही आज का लेक्चर अटेंड करो. हमेशा एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक सिस्टम में चलो. जहां तहां से कोई भी वीडियो उठाकर देखने मत लगो. If you want to do this chapter, to learn this chapter, to study this chapter properly, sincerely, and in a very, very systematic manner, in the best manner, then you have to follow the lectures in a sequence. Make sure to follow the lectures in a sequence. Okay, because I'm explaining line by line, word by word, which is very, very vital for grasping the concept in the best manner. So now we have already discussed about evaporation and boiling in the previous lectures.
What is the first point of difference? Let us see. The evaporation takes place at all temperatures, while boiling takes place at a fixed temperature, and which that particular fixed temperature is called boiling point of the liquid. This point is something which we have discussed earlier many times. Second point is also very, very easy to understand. The evaporation occurs only from the surface of the liquid. याद करो, मैंने जो पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर्स में बताया था, जब मैंने डिस्कस किया था इवेपोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन. देखो मैं पीछे ले जाता हूं तुम लोगों को. यहां पर एक टॉपिक है, ये वाला टॉपिक जो मैंने पहले लेक्चर्स में पढ़ाया था, एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेपोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन. तो इस टॉपिक में मैंने ये बताया था ना, इफ यू रिमेंबर, दैट वो मॉलिक्यूल जब इवेपोरेट करता है, लिक्विड मॉलिक्यूल, वो पहले सरफेस पे आता है, सरफेस पर आता है. देखो लिखा हुआ है रीचेस द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ओके, तो यहां पे है, हियर इट इज. ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ये मैंने पढ़ा दिया है, बट जस्ट टू connect the today's topic with this one, I am just repeating it. During evaporation, some molecules near the surface of the liquid acquire sufficient kinetic energy by collisions with other molecules. तो ये मैंने पढ़ा दिया है कि ये surface फिनोमिनन है इवेपोरेशन. जो मॉलिक्यूल सरफेस पर आकर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं वही इवेपोरेट करते हैं. लेकिन बॉइलिंग में सरफेस फिनोमिनन नहीं है. क्या लिखा हुआ है? बॉइलिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द मास ऑफ द लिक्विड एट द सेम इंस्टेंट. एक ही समय में सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी बॉयल ऑफ कर सकते हैं, या उसके नीचे में लिक्विड में जहां तहां मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉयल ऑफ कर सकते हैं. तो इट इज नॉट नेसेसरीली अ सरफेस फिनोमिनन. Boiling is not a surface phenomenon, but evaporation is a surface phenomenon. The third point of difference: in evaporation, some molecules near the surface of the liquid acquire sufficient kinetic energy by collisions with the other liquid molecules to overcome the attractive forces, thus absorbing the heat from the surroundings. They escape out in space. तो ये जो evaporation में molecules हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या करता है, सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग से हीट एनर्जी को लेकर वो स्केप आउट कर जाता है, मतलब गैस में चेंज हो जाता है. कहां से हीट लेता है? सराउंडिंग से हीट. दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और इसी की वजह से सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है वो फॉल करता है, कूलिंग इफेक्ट होता है. अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑन द अदर हैंड, इन बॉइलिंग एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, the average kinetic energy of the liquid molecules becomes sufficient to overcome the forces of attraction of other molecules, and they start leaving the liquid throughout the mass of the liquid. As a result, bubbles are formed. देखो बॉइलिंग में बबल्स बनता है, जब पानी उबालते हो देखोगे उसमें बबल्स बनता है. Those bubbles indicate that, and those bubbles are formed throughout the mass of the liquid. अगर लिक्विड को बॉयल कर रहे हो, सिर्फ सरफेस का ही पानी, सरफेस का ही मॉलिक्यूल्स तो नहीं वेपोराइज कर रहे हैं. देखोगे बबल्स तुम्हारे पूरे थ्रू आउट द लिक्विड में बबल्स बने हुए हैं जब पानी उबल रहा है, और साइड्स ऑफ द वेसल में तो ज्यादा. देखे हो ध्यान से, अगर कांच का वेसल में पानी उबाल रहे हो तो ऐसा ही होता है. व्हाट डज दीज बबल्स इंडिकेट? दीज बबल्स इंडिकेट दैट the liquid molecule has changed into gaseous state. The liquid has changed to gas. That means it has already boiled off. इसीलिए यहाँ बबल बना है क्योंकि वो गैस में चेंज हो गया. These bubbles move to the surface and the boiling of the liquid takes place. और ये बबल फिर क्या होता है, ये तो गैस बन चुका है ऑलरेडी, फिर ये सरफेस तरफ जाता है और ये बाहर escape out कर जाता है. This is how the boiling is happening. But this doesn't happen in evaporation. You will not see a bubble during evaporation. तुम किसी बाहर में लेक या पॉन्ड में जाओ तो वहां बबल्स थोड़ी दिखेगा तुमको, लेकिन पानी इवेपोरेट कर रहा है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस: इन इवेपोरेशन हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. सराउंडिंग से हीट को लिया जाता है इवेपोरेशन में, so as to change to what vapor state. While in boiling, heat is supplied externally at a fixed temperature. तो फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बता रहा है कि इवेपोरेशन जब पानी का होता है या कोई भी लिक्विड का जब इवेपोरेशन हो रहा है तो वो हीट कहां से लेता है? सराउंडिंग से हीट लेता है. उसके सराउंडिंग्स में जो हीट प्रेजेंट है वो हीट को लेकर वो इवेपोरेट कर रहा है. लेकिन बॉइलिंग के समय जब पानी उबाल रहे हैं तो वो सराउंडिंग से हीट नहीं लेता है, हम एक्सटर्नली हीट को सप्लाई करते हैं. इफ यू सी दिस वर्ड, क्या लिखा हुआ है? हीट इज सप्लाइड एक्सटर्नली. जैसे हमने गैस जला दिया,
गैस जला दिया, गैस पर पानी चढ़ा दिया, तो वो द गैस जो हम जला दिए, जो फायर हम जला दिए फ्लेम से, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट। हम एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और उस हीट की वजह से पानी कांस्टेंट टेम्परेचर में बॉयल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों दोनों प्रोसेस में देख रहे हो ना, हीट का सोर्स अलग अलग है। इवेपोरेशन में द सोर्स ऑफ हीट इज द सराउंडिंग्स, एंड इन बॉइलिंग द सोर्स ऑफ हीट इज द एक्सटर्नली अप सप्लाइड source of heat, which can be the Bunsen burner or the gas stove, whatever fire you have ignited to, boil off the liquid. Fifth point of difference is evaporation is a slow process while boiling is a rapid process. Evaporation बहुत slowly होता है और boiling बहुत fast होता है, right? This is something very easy to understand. Coming to the next topic, thermal expansion, and this is a very very important topic. Now here we are going to jump into the next, basically the next part and another part of the chapter. हीट ट्रांसफर में अगर तुम ध्यान से देखो कि हम यहाँ पर हीट का जो इफेक्ट है, तीन तरह का जो इफेक्ट हमने पहले पढ़ा था। इफ यू सी, आई एम कमिंग टू द फर्स्ट डे लेक्चर, लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था ये वाला टॉपिक, याद करो, लेक्चर 1 में पढ़ा था ये टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ हीट। तुमको स्क्रीन में दिख रहा है, मैंने जूम कर दिया है। इफेक्ट्स ऑफ हीट, यहाँ पर सबसे पहला टॉप इफेक्ट था चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, फिर था चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी, और थर्ड वाला था चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी। यानी हीट देने पर बॉडी एक्सपैंड करता है और ठंडा करने पर, हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेने पर बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यही वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन, जहां हीट देने पर बॉडी एक्सपैंड करता है। सो दिस इज द टॉपिक, थर्मल एक्सपेंशन। दिख रहा है, मैंने जूम कर दिया, काफी बड़ा दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पढ़ने लायक दिख रहा है ना। अभी कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर प्रीवियस लेक्चर्स में फॉन्ट साइज काफी छोटा है तो देखने में दिक्कत हो रही है, देयरफॉर आई हैव zoomed इट आउट। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल कि अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है देखने में, तो तुम अपना पिक्चर क्वालिटी, वीडियो का जो रेजोल्यूशन है, पिक्चर क्वालिटी है, उसको एकदम मैक्सिमाइज कर दो, एकदम एडवांस्ड पिक्चर क्वालिटी, एकदम उसको HD में देखो। वहां यूट्यूब में चेंज कर सकते हो ना पिक्चर क्वालिटी को, तो सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी में देखोगे तो तुम्हें पूरा क्लियर दिखेगा, एकदम HD में दिखेगा, राइट? So this is one thing I want to tell. Now, thermal expansion. It has been experimentally observed that when a solid, when a substance, whether it is a solid, liquid, or a gas, is heated, it expands. Very simple. And when it is cooled, जब उसको ठंडा करते हैं, any substance, whether it is solid, liquid, or gas, when it is cooled, it contracts. Simple. We will now consider the thermal expansion. Thermal का मतलब, थर्मल वर्ड आया कहां से? थर्मल रिलेट्स टू हीट, थर्मल रिलेट्स टू हीट, हीट के वजह से जो एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। सो वी विल नाउ कंसिडर द थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस सेपरेटली। थर्मल एक्सपेंशन में कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कि हीट देने पर वो एक्सपैंड ना करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या हीट ले लेने पर वो कॉन्ट्रैक्ट ना करके एक्सपैंड करेगा, उल्टा होगा। यानी जनरली कोई भी चीज को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करेगा, ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर इसका उल्टा बिहेवियर शो हो कि हीट देने पर वो कॉन्ट्रैक्ट करे, हीट ले लेने पर वो एक्सपैंड करे, तो वो वैसे सब्सटेंसेस भी हैं जिनको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, मतलब अपवाद। वो क्या क्या है देखो, लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आर वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, पानी, लेकिन पानी हमेशा नहीं, जब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच का रीजन है, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस वाटर, उस टेम्परेचर के रेंज का जो पानी है, वो पानी हीट करने पर कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड हीट निकाल लेने पर यानी ठंडा करने पर एक्सपैंड करता है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। द सेकेंड एक्सेप्शन इज सिल्वर आयोडाइड, लेकिन हर टेम्परेचर पर नहीं, इसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो इस रेंज ऑफ टेम्परेचर में होता है, 80 डिग्री सेल्सियस टू 141 डिग्री सेल्सियस। And another exception is silica. Silica is also a substance, and which also show this exceptional behavior below which temperature? Below -80 degrees Celsius.
-80 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर हम सिलिका को ठंडा करेंगे ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो एक्सपैंड करेगा। और उसको हीट देंगे -80 डिग्री सेल्सियस के नीचे के टेम्परेचर में, उसको अगर हीट देंगे तो वो एक्सपैंड ना करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो लिखा हुआ है, दे कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग एंड एक्सपैंड ऑन कूलिंग एट द गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन तुमको याद कर लेना है तीनों। और ये तीनों याद करना इजी है, क्योंकि ओनली 3 एक्सेप्शंस यू हैव टू लर्न। सी बेसिकली यू आल्सो नीड टू मेमोराइज सर्टेन थिंग्स। और याद करना भी एक कला है। यू कैन नॉट टेल कि मुझे याद नहीं होता है। याद करना भी कला है। इन फिजिक्स ऑल्सो सर्टेन थिंग्स यू हैव टू मग अप, यू हैव टू मेमोराइज, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल। यू कैन नॉट डू अवे विद द स्किल सेइंग दैट नहीं नहीं मुझे तो याद नहीं होता है, रट्टा तो मैं नहीं मार सकता। नहीं, कुछ कुछ चीजें तुमको रटना पड़ेगा, लाइक दीज एग्जाम्पल्स यू हैव टू मग अप। ओके, लेकिन कंसेप्ट समझ के रटना। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब हम बात करेंगे सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड बोले तो एक ऐसा मैटर विच हैज अ डेफिनेट शेप। ओके, सो अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब आप हीट करते हैं सॉलिड को, इट एक्सपैंड्स इन ऑल डायरेक्शंस। अ सॉलिड हैज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, है ना? Hence, the length, the area, and the volume all increase on heating a solid. The increase in length of a solid is called linear expansion. The increase in area of a solid is called superficial expansion. And the increase in volume of the solid is called cubical expansion या फिर volume expansion. अब इसको समझते हैं, इसको समझते हैं क्या कहा गया है। देखो, 3 वर्ड का यूज किया गया है यहां पर। एक है लीनियर एक्सपेंशन, very simple to understand. Second one is superficial expansion, and the third one is cubical expansion, जिसको वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बोलते हैं। 3 तरह का एक्सपेंशन है, और तीनों ही थर्मल एक्सपेंशन का अलग अलग रूप है। थर्मल एक्सपेंशन यानी, what is thermal expansion? I have already explained. The expansion of a body due to heat. हीट देने पर बॉडी का जो एक्सपेंशन हुआ, साइज बढ़ गया, उसको बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। और वो 3 तरीके का हो सकता है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब इमेजिन करो, एक पतला सा तार है तुम्हारे पास, अ वेरी थिन वायर। इस वेरी थिन वायर को अगर तुम हीट करोगे, तुम गर्म किया, तो क्या देखोगे, इसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा। पहले लेंथ मान लो इसका 10 सेंटीमीटर था, और हीट करने के बाद अगर तुमने उसको मेजर किया तो देखा कि इसका लेंथ थोड़ा बढ़ गया है, ये अभी 10.2 सेंटीमीटर हो गया है। यानी 0.2 सेंटीमीटर ये इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हुआ? इसका लेंथ इंक्रीज हुआ, लेंथ। लेकिन ये तार इतना पतला है कि इसका जो थिकनेस में इंक्रीज होगा वो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल है। मैंने बोला ना कि बहुत पतला तार तुमने लिया है, ये तार इतना पतला है कि ऑब्वियसली इसका थिकनेस, द थिकनेस ऑफ द वायर विल आल्सो इंक्रीज ऑन हीटिंग, बट दैट इंक्रीज इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। लगभग ना के बराबर थिकनेस में इंक्रीज हुआ है, लेकिन लेंथ में देयर इज सफिशिएंट ऑब्जर्वेबल इंक्रीज। 0.2 सेंटीमीटर का इंक्रीज हुआ है लेंथ में। तो ये जो सिर्फ लेंथ का इंक्रीज हुआ, उस तरह का थर्मल एक्सपेंशन को बोलेंगे linear expansion. Whenever we are referring to the increase in length of the solid, then that thermal expansion is actually linear expansion. वही यहां पे लिखा हुआ है, the increase in length of a solid, as in this case I have talked about a very thin wire जिसका सिर्फ length increase किया था, this kind of expansion is called linear expansion. समझ में आ गया? Next, coming to the word superficial expansion. Now let us consider a very thin लैमिना। लैमिना मतलब शीट, एक स्क्वायर शीट का इमेजिन करो, एंड नॉट नेसेसरली अ स्क्वायर शीट, इट कैन बी एनी शेप शीट। लैमिना, इट कैन बी अ सर्कुलर लैमिना, इट कैन बी अ रैंडम शेप्ड लैमिना, एनी रैंडम शेप्ड लैमिना। लैमिना का मतलब समझ रहे हो? एक शीट, पतला सा, जो तुम्हारा कॉपी का जो कागज होता है, उस कॉपी का कागज को इमेजिन करो। ठीक है, तो उसी तरह का एक तुम्हारा एक शीट ले लिया, लेकिन ये पेपर का शीट नहीं है, ये मेटल का शीट है, ताकि इसको हम हीट करेंगे, क्योंकि पेपर का शीट को अगर हम हीट करेंगे तो पेपर जल जाएगा। तो इमेजिन करो एक बहुत पतला एल्यूमिनियम फॉयल का एग्जांपल सबसे अच्छा है।
जिससे हम खाना वगैरह, रोटी वगैरह रैप करते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉयल। तो तुमने इस तरह का एक एल्यूमिनियम फॉयल ले लिया, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस काइंड ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसका क्या होता है ना, इसको अगर तुम हीट करोगे, इसको अगर तुमने हीट किया काफी देर, तो देखोगे हीट करने के बाद इसका एरिया बढ़ जाएगा। मतलब कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ जाएगा। ये मान लो लेंथ है और ये मान लो ब्रेथ है, तो ये लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ जाएगा, यानी एरिया बढ़ जाएगा। पहले इसका मान लो एरिया था, इस शीट का एरिया मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और हीट करने के बाद हमने क्या देखा कि इसका एरिया मान लेते हैं 105 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, बढ़ गया एरिया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ जाएगा। और ये शीट इतना पतला है कि इसका जो थिकनेस इंक्रीज करेगा वो नेग्लिजिबल इंक्रीज है। तो हम थिकनेस यानी हाइट की कोई बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये एकदम पतला शीट है जिसका जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। तो सिर्फ जो इंक्रीज होगा हीट करने के बाद वो लेंथ का और ब्रेथ का इंक्रीज है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ गिव्स द एरिया, यानी एरिया का इंक्रीज हो जाएगा। जब हम कोई भी सॉलिड को हीट करने के बाद उसका एरिया का इंक्रीज होता है, या एक इंक्रीज मतलब एक्सपेंशन, एरिया एक्सपैंड करता है, तो उस तरह के एक्सपेंशन को हम बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन। सो यहां पे क्या है, द इंक्रीज इन एरिया इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब हम बात करेंगे एक ऐसे सॉलिड की जिसका कंप्लीट वॉल्यूम एक्सपैंड करे हीट करने पर। जैसे कि तुमने एक क्यूब ले लिया, एक क्यूब ले लिया, ठीक है। तो क्यूब ले लिया, इसका लेंथ भी है, इसका ऑब्जर्वेबल ब्रेथ भी है, और इस क्यूब का एक हाइट भी है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों फैक्टर्स एक 3D सब्सटेंस है। तो इसको अगर हम हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद देखेंगे कि इसका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका लेंथ भी बढ़ जाएगा थोड़ा, ब्रेथ भी बढ़ जाएगा, हाइट भी बढ़ जाएगा। यानी इसका ये क्यूब जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पूरी साइज में, यानी ओवरऑल वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर गया। तो ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है, expansion in case of in the volume, it is known as cubical expansion। अच्छा, अब बात आती है, क्या सिर्फ ये क्यूब के बारे में ही वर्ड यूज करेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन? जब क्यूब का वॉल्यूम बढ़ जाए हीट करने पर, तभी हम क्या क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलेंगे। क्या अगर मेरे पास एक स्फीयर है, बॉल, 3 डायमेंशनल में स्फीयर, स्फीयर को अगर हम हीट करेंगे तो वो स्फीयर भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा साइज में, यानी इसका भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा स्फीयर का। तो क्या उस केस में हम क्यूबिकल एक्सपेंशन नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। क्यूबिकल एक्सपेंशन इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर क्यूब, अंडरस्टैंड दिस वर्ड, ऑल्दो वी से इट क्यूबिकल एक्सपेंशन, बट ये हमें समझ लेना और क्लियर कर लेना है कि क्यूबिकल एक्सपेंशन सिर्फ क्यूब का एक्सपेंशन की ही बात नहीं की जाती है। कोई भी सब्सटेंस अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है हीट करने पर, तो उसके वॉल्यूम का जो इंक्रीज है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। एंड इट इज नॉट नेसेसरली ओनली इन एक्सपेंशन इन अ क्यूब, इट कैन बी एक्सपेंशन इन अ क्यूबॉइड और अ सिलेंडर और अ स्फीयर और अ कोन, एनी शेप, एनी रैंडम शेप बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी, उसको अगर हीट किया, उसका वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया, तो हम बोलेंगे कि क्यूबिकल एक्सपेंशन हुआ है बॉडी में। तो इस बात से मत सोचना कि क्यूबिकल एक्सपेंशन सिर्फ क्यूब का एक्सपेंशन को ही बोल रहे हैं, इट इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसीलिए क्यूबिकल एक्सपेंशन का दूसरा नाम क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो क्या लिखा हुआ है? द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आज हम वीडियो को छोटा रखते हैं, लेक्चर 4 यहीं पे हम एंड करेंगे। लेक्चर 5 बहुत जल्दी आएगा, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, then please press the subscribe button and also the bell icon so that you do not miss out the next lecture, which I will be uploading very soon. At the same time, if you have not watched the previous lectures, let me remind you that there's a link given in the description box. Please check the link and watch all the previous lectures. God bless you, take care, and keep tuned to this channel.